میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا عمل جو تمہیں چند لمحوں کی خوشی دیتا ہے وہ تمہاری آخر تک کے لیے زنجیر بھی بن سکتا ہے؟ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں تم نے وہ غلطی کر دی جو تمہیں اللہ کے غضب میں مبتلا کر سکتی ہے، جو تمہارے روزے کو برباد کر سکتی ہے، جو تمہارے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے، تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر تم نے روزے کے دوران ان 3 جگہوں پر بوسہ دے دیا تو یاد رکھو، تمہارا روزہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری عبادت بھی رائیگاں چلی جائے گی، تمہاری بھوک، تمہاری پیاس، تمہاری ساری محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جائے گی، اور اس کا بدلہ تمہیں روز قیامت ملے گا، جب تم اپنے اعمال کے بدلے قیامت کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ پیاری بہنوں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر کا نام ہے، یہ تقویٰ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے۔ لیکن اگر تم نے روزے کی حالت میں ان 3 جگہوں پر بوسہ دینے کی غلطی کر دی تو یاد رکھنا، تمہارا روزہ محض ایک رسم بن جائے گا، تمہارے لیے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تمہاری عبادت بے معنی ہو جائے گی، تمہارا صبر، تمہاری محنت، تمہاری نیکی سب ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہلکا پڑ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہوگا، جب زمین کانپ رہی ہوگی، جب آسمان دہل چکا ہوگا، جب ہر انسان چیخ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، تو کیا تم نے سوچا کہ تمہارے اعمال کس چیز کی گواہی دیں گے؟ پیاری بہنوں، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، کوئی بہن اپنے بھائی کو نہیں پکارے گی، کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے نہیں روئے گی، ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اور اگر تمہارے نام اعمال میں یہ غلطی لکھی ہوئی تو تمہارے قدم کس طرف بڑھیں گے؟ میرے بھائیوں، اگر تم نے روزے کے دوران ان 3 جگہوں پر بوسہ دیا تو یاد رکھنا، تمہارا روزہ بھی گیا، تمہاری عبادت بھی برباد ہوئی، تمہاری نیکی بھی ضائع ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ بھی یقینی ہو گئی۔ قیامت کے دن تمہارے جسم کا ہر حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہاری زبان چپ ہو جائے گی، لیکن تمہارا ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے قدم سب تمہارے اعمال کو ظاہر کر دیں گے، اور اگر وہ لمحہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا تو کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی حج، کوئی صدقہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت سلامت رہے، تمہاری قبر جنت کا باغ بنے، تمہاری آخرت سنور جائے، تو اس بات کو سمجھو کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسا عمل نہ کرو جو تمہاری آخرت کو برباد کر دے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، سوچو، اگر آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو، اگر آج کی رات تمہارے اعمال کا فیصلہ ہو، اگر آج تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہو، تو کیا تم واقعی وہ اعمال کر رہے ہو جو تمہیں جنت کے قریب کر سکے؟ اگر نہیں تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے عمل کو بچا لو، اپنے قدموں کو سنبھال لو، اپنے فیصلوں کو درست کر لو، کیونکہ وہ لمحہ قریب ہے جب پچھتاوا کام نہیں آئے گا، جب آنسو فائدہ نہیں دیں گے، جب چیخیں سنی نہیں جائیں گی۔ اگر آج تمہارے اعمال کا فیصلہ ہو جائے، اگر آج تمہارے ہاتھوں کی حرکتیں، تمہاری زبان کے الفاظ، تمہاری نظروں کی خیانت، تمہاری نیت کے راز سب کچھ کھل کر سامنے آ جائیں، تو کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا نام اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال کا حساب نماز سے لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی سب کچھ آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سوچو، جب نماز جیسے عمل کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو وہ اعمال جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، جنہیں ہم معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کیسے ہمیں بخشوا سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے قدم سب کچھ بولے گا اور کہے گا کہ اس نے پھلاں وقت یہ گناہ کیا تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری زبان خاموش رہے گی تو یاد رکھو، تمہاری ہتھیلیاں گواہی دیں گی، تمہاری انگلیاں پکاریں گی، تمہاری نظروں کی خیانت سامنے آ جائے گی، تمہارا جسم چیخ چیخ کر بتائے گا کہ تم نے کہاں کہاں اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے،
जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सबसे छोटी नेकी भी महफूज है और तुम्हारी सबसे मामूली बुराई भी लिख दी जा चुकी है। जो चीज़ दुनिया में छुप सकती थी वो आखिरत में कैसे छुपेगी? सोचो, अगर तुमने रात के अंधेरे में, तन्हाई में, रोज़े की हालत में इन 3 जगहों पर बोसा दिया, तो क्या तुम ये समझते हो कि ये अमल लिखा नहीं जाएगा? नहीं, फरिश्ते उसे कलमबंद कर चुके होंगे, और क़यामत के दिन जब आमाल खोले जाएंगे, जब बंदा सोचेगा कि शायद कुछ गुनाह माफ़ हो चुके हों, शायद कुछ बातें भुला दी गई हों, लेकिन अचानक जब वही आमाल उसके सामने लाए जाएंगे, जब वो अपनी नज़रों से देखेगा कि हर वो बात जो उसने दुनिया में की वो सब लिखी जा चुकी है, तो उस वक़्त जो शर्मिंदगी होगी, जो पछतावा होगा, जो खौफ होगा, वो नाकाबिले बयान होगा। प्यारी बहनों, अगर कोई शख्स कहे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतने से अमल से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसे ये समझना चाहिए कि इंसान कभी बड़े गुनाह की तरफ एक ही जस्ट में नहीं पहुंचता। वो हमेशा छोटे गुनाहों से आगाज़ करता है। वो पहले मामूली बुराई को हल्का समझता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह उसकी आदत बन जाता है, और जब आदत पुख्ता हो जाए तो शैतान उसके दिल में डाल देता है कि ये गुनाह तो कोई गुनाह ही नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक दरख्त जब छोटा होता है तो उसे जड़ से उखाड़ना आसान होता है, लेकिन अगर उसे सालों तक परवान चढ़ने दिया जाए तो एक दिन वो तनावर दरख्त बन जाता है। फिर लाख कोशिश करो, वो आसानी से जड़ से नहीं निकलता। गुनाह भी ऐसा ही है, जब वो शुरू में होता है तो उससे बचना आसान होता है, लेकिन अगर तुमने उसे मामूली समझा, अगर तुमने उस पर पर्दा डाल दिया, अगर तुमने सोचा कि बस एक बार इसमें क्या हरज है, तो वही गुनाह तुम्हें कब्र के अंधेरों में ले जा सकता है, वही तुम्हें क़यामत के दिन शर्मिंदा कर सकता है, वही तुम्हारी इबादतों को जाया कर सकता है। अगर तुम रोज़े में हो, तुम भूखे प्यासे हो, तुम दिन भर इबादत कर रहे हो, तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, तुम तौबा कर रहे हो, लेकिन अगर इसी रोज़े की हालत में तुमने वो 3 बोसे दे दिए जो तुम्हें बर्बादी के दहाने पर ले जा सकते हैं, तो क्या तुम्हारा रोज़ा वाकई इबादत का दर्जा रखेगा? सोचो, तुमने अपने गुनाहों को खुद अपने अमाल के तराजू में रखा है। अगर वो अमाल तुम्हारे खिलाफ हो गए तो सोचो कि तुम्हारी बख्शिश कैसे मुमकिन होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रोज़े की मेहनत राइगा न जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेकियां बर्बाद न हो, तो संभल जाओ, बच जाओ, क्योंकि वो लम्हा करीब है जब पछतावा काम नहीं आएगा, जब आंसू फ़ायदा नहीं देंगे, जब चीखें सुनी नहीं जाएंगी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी 3 जगहें हैं जहां रोज़े के दौरान बोसा देना तुम्हारे लिए आजमाइश बन सकता है, जहां एक लम्हे की गलती तुम्हारी सारी मेहनत को जाया कर सकती है, जहां शैतान तुम्हारे ज़ब्त को तोड़ने के लिए घात में बैठा होता है, जहां तुम्हारा नफ्स तुम्हें बहकाने के लिए तैयार खड़ा होता है। मोहतरम भाइयों, अगर तुमने इन जगहों पर अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर बोसा दे दिया, तो याद रखो, तुम्हारा रोज़ा भी खतरे में पड़ सकता है, तुम्हारी इबादत भी बर्बाद हो सकती है, तुम्हारा नाम ए आमाल भी स्याह हो सकता है। अब आओ, सबसे पहले बात करते हैं वो पहली जगह जहां रोज़े की हालत में शौहर के लिए बोसा देना खतरनाक हो सकता है। वो जगह जहां एक लम्हे की गफलत तुम्हें अल्लाह की नाराज़गी में डाल सकती है। वो जगह जहां मोहब्बत के नाम पर की गई एक छोटी सी हरकत तुम्हारे रोज़े की रूह को मजरूह कर सकती है। पहली जगह जहां शौहर के लिए रोज़े के दौरान बोसा देना गुनाह और आजमाइश का सबब बन सकता है, वो है बीवी के होंठ। मोहतरम भाइयों, अगर तुमने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के होंठों पर बोसा दिया और तुम्हें लगा कि ये महज एक मोहब्बत का इजहार था, तो याद रखो, ये मोहब्बत नहीं, ये तुम्हारे ज़ब्त का इम्तिहान है, ये तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, ये तुम्हारी नीयत का इम्तिहान है। मेरे नबी ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने का भी नाम है। सोचो, अगर तुमने अपनी बीवी के होंठों को छुआ और तुम्हारा दिल बेकाबू हो गया, अगर तुम्हारी नीयत में तब्दीली आ गई, अगर तुम्हारी ख्वाहिशात बेदार हो गईं, तो क्या तुम्हारा रोज़ा वाकई मुकम्मल रहा? अल्लाह का फरमान है, और जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे वो गुमराही में जा पड़ता है। तुमने एक लम्हे की गफलत में वो गलती कर दी जिसने तुम्हारे नफ्स को शैतान के करीब कर दिया, तुम्हारे दिल को गुमराही की तरफ खींच दिया, तुम्हारे ज़ब्त को कमज़ोर कर दिया और तुम्हें उस अंजाम के करीब कर दिया जिसका तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं। मोहतरम भाइयों, रोज़ा एक ढाल है, ये तुम्हें गुनाह से रोकता है, ये तुम्हें ख्वाहिशात के बहाव में बहने से रोकता है,
लेकिन अगर तुमने अपने ही हाथों से इस ढाल में दरार डाल दी, अगर तुमने अपने ही अमल से इस तहफ और फुज को तोड़ दिया, तो सोचो तुम्हारे लिए क्या बाकी बचेगा। प्यारी बहनों, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बोसा देने के लिए माइल करे तो उसे समझाओ, उसे बताओ कि ये रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, ये रूह की पाकीज़गी का नाम है, ये दिल की सफाई का नाम है, ये ख्वाहिशात पर काबू पाने का नाम है। और अगर उस लम्हे में तुमने उसकी ख्वाहिश को तस्लीम कर लिया तो याद रखो तुम भी उस गुनाह में शरीक हो जाओगी, तुम्हारी इबादत भी मुतासिर हो सकती है, तुम्हारा तकवा भी कमज़ोर हो सकता है। और कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी ये नरमी क़यामत के दिन तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए। मोहतरम भाइयों, अगर तुम रोज़े के दौरान अपनी बीवी के होंठों को बोसा दे रहे हो तो सोचो, क्या तुम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें रोज़े में नहीं करना चाहिए? क्या तुम वाकई अपनी भूख प्यास को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रहे हो या सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे हो? सोचो, अगर तुम्हारे आमाल के तराजू में यही लम्हा तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगे, अगर यही गलती तुम्हारे रोज़े को जाया कर दे, अगर यही ख्वाहिश तुम्हें उस दर्जे से गिरा दे जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया था, तो क्या तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, अगर तुम रोजे के दौरान इस आजमाइश में पड़ गए, अगर तुमने अपने नफ्स के हाथों खुद को हारने दिया, तो याद रखो क़यामत के दिन तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी है। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जुबान, तुम्हारी नजरें, सब कुछ गवाही देगा कि तुमने क्या किया था। और अगर वो लम्हा तुम्हारे लिए नदामत बन गया तो कोई फिदिया, कोई दुआ, कोई सिफारिश तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मेरी बहनों और भाइयों, इस जगह बोसा देने का अंजाम क्या होता है, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक दरवेश किसी बस्ती से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक जंजीरों में जकड़े कगैदी को देखा जो चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी आज़ादी के लिए फरियाद कर रहा था, लेकिन उसके जिस्म पर मजबूत बेड़ियां पड़ी थीं। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, उसके कदम जमीन से जमे हुए थे। वो जितना जोर लगाता उतना ही तकलीफ में इजाफा होता। दरवेश ने एक लम्हे के लिए रुककर कैदी से पूछा, तुझे किस जुर्म में कैद किया गया है? कैदी ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने एक ऐसी चीज को छू लिया था जो मुझे नहीं छूनी चाहिए थी। मैंने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसका अंजाम मैंने नहीं सोचा था। मैंने एक ऐसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा जिसके लिए मुझे रोक दिया गया था, लेकिन मैंने उसे हल्का लिया। मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगा और बच जाऊँगा, लेकिन मैं गलत था। अब मेरा जिस्म भी कैद में है, मेरी रूह भी बेकरार है और मैं रिहाई की भीख मांग रहा हूँ। दरवेश ने सर झुकाकर कहा, ए नादान, ये दुनिया में दी गई सज़ा है, लेकिन अगर तूने तौबा न की तो आखिरत की कैद में जंजीरें आग से बनी होंगी। वहाँ चीखें सुनी नहीं जाएंगी, वहाँ माफियाँ कबूल नहीं होंगी, वहाँ एक लम्हे की ख्वाहिश हमेशा के लिए अजाब बन जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आज तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि एक लम्हे का गलत फैसला तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को जकड़ सकता है, तो तुम गुनाह की तरफ बढ़ने से पहले 1000 बार सोचोगे। तुम्हें क्या लगता है, वो शख्स जो रोजे की हालत में अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सका, जिसने अपनी निगाहों की खियानत को रोक नहीं सका, जो अपने जज्बात के हाथों बेबस हो गया, क्या उसके रोजे का नूर बाकी रहेगा? क्या वो वाकई अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख रहा था या महज एक रस्म अदा कर रहा था? क्या वो शख्स जो एक लम्हे की लज्जत के लिए अपने नफ्स के आगे झुक गया, क्या वो रोजे की असल रूह को समझ पाया? नहीं, रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं, ये तुम्हारी रूह की आजमाइश है, ये तुम्हारे इरादे का इम्तिहान है, ये तुम्हारी नीयत का इम्तिहान है। और अगर तुमने अपने ही हाथों से अपनी इबादत की रोशनी को बुझा दिया, अगर तुमने अपने ही कदमों से अपनी नेकी को झाया कर दिया, तो सोचो कयामत के दिन तुम्हारे पास क्या बचेगा? क्या तुम भी उस कैदी की तरह रो रहे होगे जो चीख रहा होगा, जो अपनी ख्वाहिशात के हाथों कैद हो चुका होगा, जो अल्लाह के दरबार में रिहाई की भीख मांग रहा होगा? सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल का वजन हल्का पड़ जाए, तुम्हारे रोजे बोझ बन जाएं, तुम्हारी इबादतें बेकार हो जाएं और तुम्हारा दिल उस दिन कह रहा हो, काश मैंने वो बोसा न दिया होता, काश मैंने अपनी ख्वाहिश को काबू में रखा होता, काश मैंने रोजे की असल हकीकत को समझा होता। लेकिन उस दिन काश कहना फायदा नहीं देगा। उस दिन काश के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। उस दिन बस फैसला होगा,
मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर तुम जान लो कि एक लम्हे की नादानी तुम्हें कहाँ ले जा सकती है, अगर तुम समझ लो कि शैतान तुम्हारी कहाँ कमजोरी देखकर हमला करता है, अगर तुम्हें मालूम हो कि कयामत के दिन तुम्हारे आमाल कैसी गवाही देंगे, तो तुम कभी भी अपनी ख्वाहिशात के हाथों खुद को हारने न दो। आओ अब बात करते हैं उस दूसरी जगह की, जहां रोजे की हालत में शौहर के लिए बोसा देना खतरनाक साबित हो सकता है, जहां तुम्हारा एक अमल तुम्हारे लिए आजमाइश का दरवाजा खोल सकता है, जहां तुम्हारी नीयत का इम्तिहान हो सकता है और जहां तुम्हारे रोजे की हकीकत पर सवाल उठ सकता है। दूसरी जगह जहां रोजे की हालत में बोसा देना तुम्हारे लिए आजमाइश बन सकता है, वो है बीवी की गर्दन। मुहतरम भाइयों, गर्दन पर बोसा देना एक ऐसा अमल है जो जज्बात को भड़काने वाला है, जो तुम्हारे नफ्स को आजमाने वाला है। अगर तुमने सोचा कि ये तो मोहब्बत का इजहार है, तो याद रखो, शैतान तुम्हें ऐसे ही बहलाता है। शैतान तुम्हें कदम ब कदम गुनाह की तरफ लेकर जाता है और तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता कि कब तुम्हारा रोजा खोखला हो गया, कब तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया, कब तुम्हारी आजमाइश शुरू हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रोजे में होने के बावजूद अपनी शहवत पर काबू न रख सका, उसका रोजा भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं। सोचो, अगर तुम रोजा रख कर भी अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल न कर सके, अगर तुम भूख और प्यास बर्दाश्त करके भी अपने नफ्स को काबू में न रख सके, अगर तुमने अपनी इबादत की असल रूह को ही फरामोश कर दिया, तो फिर तुम्हारे रोजे में क्या बाकी बचा? अल्लाह का फरमान है, और जो अपने नफ्स को काबू में न रखे वो हलाक होने वालों में शामिल हो जाएगा। मोहतरम भाइयों, गर्दन पर बोसा देना महज एक लम्हे की नरमी नहीं, ये तुम्हारी नीयत का इम्तिहान है, ये तुम्हारी ख्वाहिशात का दरवाज़ा खोलने वाला अमल है। ये तुम्हें उस राह पर डाल सकता है जहाँ रोज़े का मकसद ख़त्म हो सकता है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें इस लम्हे में बोसा देने की कोशिश करे, अगर वो तुम्हें इस इम्तिहान में डाले, तो याद रखो, तुम्हारा इनकार तुम्हारे रोज़े की हिफाजत है, तुम्हारी रोक टोक तुम्हारी इबादत की हिफाजत है, तुम्हारी दूरी तुम्हारे नफ्स की कामयाबी है। क्योंकि अगर तुमने एक लम्हे की नरमी दिखाई, अगर तुमने शैतान के बहकावे में आकर सोचा कि ये तो मामूली सी बात है, तो याद रखो, क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे, जब फरिश्ते तुम्हारे रोज़े का रिकॉर्ड खोलेंगे, जब तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी होगी, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या तुम ये कहोगे कि या अल्लाह, मैंने रोज़ा तो रखा था, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को काबू में न रख सका था? मुहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, गर्दन पर बोसा देना रोज़े के मकसद को ख़त्म कर सकता है। ये तुम्हारे नफ्स को आजमाइश में डाल सकता है। ये तुम्हारे दिल में ऐसी चिंगारी भड़का सकता है जो पूरे रोज़े को जला सकती है। सोचो, अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को काबू में न रखा, अगर तुमने इस आजमाइश को हल्का लिया, अगर तुमने सोचा कि ये तो मोहब्बत का एक अंदाज है, तो याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने आएंगे, जब तुम्हारे हर अमल की गवाही दी जाएगी। और अगर तुम्हारा रोज़ा सिर्फ एक रस्म बन चुका होगा, अगर तुम्हारी भूख और प्यास सिर्फ एक मशक्क़त बन चुकी होगी, अगर तुम्हारे सब्र का असल मकसद जाया हो चुका होगा, तो फिर तुम्हारे लिए क्या बाकी बचेगा? क्या तुम उस वक़्त सोचोगे कि काश मैंने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा होता, काश मैंने अपने रोज़े की हिफाजत की होती, काश मैंने अपनी इबादत को दुनिया की किसी लज्जत के बदले झाया न किया होता? लेकिन उस दिन काश कहना फ़ायदा नहीं देगा, उस दिन सिर्फ फैसला होगा। और अगर तुमने अपने रोज़े को झाया कर दिया, तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी, तुम्हारी भूख तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम्हारी क़यामत की रात अंधेरों में बदल जाएगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक दिन एक मुसाफिर सहरा के बीचों बीच भटक गया। पानी खत्म हो चुका था, खुराक का नाम ओ निशान न था। हर समत रेत के तपते हुए झर्रात थे और तेज धूप में उसका जिस्म जलने लगा था। वो चलता रहा, लेकिन हर कदम उसे मजीद कमज़ोर कर रहा था। प्यास ने उसके हल्क को खुश्क कर दिया था, जुबान जैसे जुड़ चुकी थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक उसने दूर एक नखलिस्तान देखा। पानी चमक रहा था, दरख्त सरसब्ज खड़े थे। एक उम्मीद की किरण थी, जिंदगी की निशानी थी। वो अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, मालूम हुआ कि ये तो एक सराब था। वहाँ पानी नहीं था, वहाँ जिंदगी नहीं थी, वहाँ बस धोखा था। एक ऐसा धोखा जो उसे तबाही की तरफ ले आया था, एक ऐसा धोखा जो उसके कदमों को मजीद कमज़ोर कर चुका था, एक ऐसा धोखा जिसने उसे आखिरी लम्हे में
मायूसी के गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, रोजे में अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाना भी ऐसे ही है जैसे एक शराब के पीछे भागना। तुम समझते हो कि एक लम्हे की नरमी तुम्हें खुशी देगी। तुम सोचते हो कि एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे दिल में ये वहम आता है कि ये तो कोई गुनाह नहीं, ये तो मोहब्बत का इजहार है। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये अमल तुम्हारे रोजे को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी नेकियों को राख में बदल सकता है, तुम्हारी इबादत की रोशनी को अंधेरे में बदल सकता है। एक मुसाफिर जो प्यासा हो, अगर वो गलत रास्ते पर निकल जाए तो वो पानी की तलाश में खुद को और ज्यादा तकलीफों में डाल देता है। वो चलता जाता है, लेकिन पानी की जगह रेत ही उसका मुकद्दर बन जाती है, और जब उसे हकीकत का सामना होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। रोजा भी एक सफर है, एक ऐसी इबादत का सफर जो तुम्हें अल्लाह की रजा की तरफ ले जाता है, जो तुम्हें बुराइयों से पाक करता है, जो तुम्हें नफ्स की गुलामी से आज़ाद करता है। लेकिन अगर तुमने इस सफर में अपनी ख्वाहिशात को रास्ते में अपना राहबर बना लिया, अगर तुमने उन शराबों के पीछे भागना शुरू कर दिया जो तुम्हें वक्ती खुशी देकर हमेशा के लिए हलाकत में डाल सकते हैं, तो याद रखो, तुम भी उस प्यासे की तरह मायूसी की वादी में गिर सकते हो। तुम्हारी भूख और प्यास बेमकसद हो सकती है, तुम्हारा रोजा महज एक खाली रस्म बन सकता है, तुम्हारी इबादत एक बेजान अमल बन सकती है। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल की हकीकत खुलने के बाद जब तुम देखोगे कि तुम्हारा रोज़ा कबूल ही नहीं हुआ, तुम्हारे सब्र का कोई बदला नहीं मिला, तुम्हारी इबादत रद्द हो गई, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? क्या तुम भी उस प्यासे मुसाफिर की तरह हसरत से नहीं कहोगे, काश मैंने इस शराब के पीछे भागने के बजाय अपने आप को बचा लिया होता, काश मैंने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा होता, काश मैंने अपनी इबादत को बर्बाद न किया होता। लेकिन उस दिन काश कहना कोई फ़ायदा नहीं देगा। उस दिन तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उस दिन तुम्हारे हाथ खाली होंगे और तुम्हारे दिल खौफ से लरज रहे होंगे। सोचो, क्या तुम भी एक शराब के पीछे भागने वाले मुसाफिर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने रोजे को खोखला करने वाले आमाल में शामिल होना चाहते हो? अगर नहीं तो रुक जाओ, संभल जाओ। अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाने से पहले एक बार सोच लो, कहीं तुम्हारा ये कदम तुम्हें ऐसा नुकसान न दे दे जिसका अजाला मुमकिन न हो। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो वो सिर्फ खाने पीने से नहीं रुकता, बल्कि अपनी नज़रों, अपने हाथों, अपनी जुबान और अपने जज्बात पर भी काबू रखता है। रोज़ा सब्र का दरस देता है, रोज़ा ज़ब्त का इम्तिहान है, रोज़ा अल्लाह की रज़ा का सफ़र है। लेकिन अगर तुमने अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ दिया, अगर तुमने अपने जज्बात को आज़ाद कर दिया, अगर तुमने रोज़े की असल रूह को नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर तुम्हारा ये रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का एक अमल बन जाएगा। वो रोज़ा जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा सकता था, वही तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। मोहतरम भाइयों, आओ अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी जगह की, जहां रोजे की हालत में बोसा देना तुम्हें ऐसी आजमाइश में डाल सकता है, जहां तुम्हारी नीयत का इम्तिहान लिया जा सकता है, जहां तुम्हारे सब्र का असल इम्तिहान होता है, जहां तुम्हें ये साबित करना होता है कि तुम अपने नफ्स पर काबू रखने के लिए कितने मजबूत हो। तीसरी जगह जहां रोजे के दौरान बोसा देना तुम्हारे लिए आजमाइश और नफ्स की कमजोरी का सबब बन सकता है, वो है बीवी के पेट पर। मोहतरम भाइयों, शायद तुम्हें लगे कि ये तो महज एक मामूली बात है, शायद तुम सोचो कि इसमें क्या हरज है, शायद तुम ये समझो कि ये तो सिर्फ मोहब्बत का एक इजहार है। लेकिन सोचो, क्या ये वो अमल नहीं जो तुम्हारे दिल में मजीद ख्वाहिशात को जगा सकता है? क्या ये वो कदम नहीं जो तुम्हें उस मकाम पर ले जा सकता है जहां तुम्हारा रोजा खतरे में पड़ जाए? क्या ये वो नरमी नहीं जो तुम्हारी नीयत को कमजोर कर सकती है? मेरे नबी ने फरमाया, रोजा ढाल है जब तक रोजेदार इसे न फाड़े। अब सोचो, ये रोजा तुम्हारी ख्वाहिशात से बचने के लिए एक मजबूत कईला था, लेकिन अगर तुमने अपने ही हाथों से इसमें दरार डाल दी, अगर तुमने अपनी ही नादानी से इस ढाल को कमजोर कर दिया, अगर तुमने अपने नफ्स के हाथों हार मान ली, तो फिर तुम्हारे लिए क्या बाकी बचा? अल्लाह का फरमान है, और जो अपने नफ्स पर काबू न रखे वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। मोहतरम भाइयों, रोजा अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, रोजा जन्नत के दरवाजे खोलने वाला अमल है। लेकिन अगर तुमने अपनी ही गलती से इसे जाया कर दिया, अगर तुमने अपने आमाल को खुद ही बर्बाद कर दिया, अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने सब्र को तोड़ दिया, तो फिर तुम्हारी भूख और प्यास का क्या फायदा? प्यारी बहनों,
अगर तुम्हारा शौहर रोजे की हालत में तुम्हारे पेट पर बोसा देना चाहे, अगर वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए ये हरकत करे, तो याद रखो, ये मोहब्बत नहीं, ये तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, ये तुम्हारी इबादत की आजमाइश है। और अगर तुमने इस लम्हे में अपनी नरमी दिखा दी, अगर तुमने शैतान को तुम्हारे दरमियान जगह दे दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये नरमी कयामत के दिन तुम्हारे लिए नदामत बन जाए। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, रोज़ा सिर्फ जिस्म को रोकने का नाम नहीं, ये दिल और दिमाग को काबू में रखने का नाम है, ये नफ्स की आजमाइश का नाम है। और अगर तुमने अपने ही हाथों से इस इम्तिहान को मुश्किल बना लिया, अगर तुमने अपने ही आमाल को बोझ बना लिया, अगर तुमने अपने ही नफ्स को आजाद छोड़ दिया, तो फिर तुम्हारे लिए कयामत के दिन क्या बाकी बचेगा? सोचो, क्या तुम इस लम्हे की नरमी के बदले अपनी आखिरत की सख्तियां खरीदना चाहते हो? क्या तुम इस दुनिया की छोटी सी आजमाइश में हार मानकर हमेशा के लिए खुद को खसारे में डालना चाहते हो? अगर नहीं, तो अपने रोजे की हिफाजत करो, अपने नफ्स पर काबू रखो, अपनी ख्वाहिशात को अपने ईमान पर गालिब ना आने दो, क्योंकि एक लम्हे की नादानी तुम्हारे पूरे रोजे को जाया कर सकती है। और कयामत के दिन जब तुम्हारे आमाल खोले जाएंगे, जब तुम्हारे हर अमल की गवाही दी जाएगी, जब तुम्हारी ख्वाहिशात का एक एक लम्हा तुम्हारे सामने ला खड़ा किया जाएगा, तो उस वक़्त तुम्हारे पास कोई बहाना बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होगी, तुम्हारे पास बस पछतावा होगा। और उस दिन पछताने वाले के लिए कोई नजात नहीं होगी। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, ये तुम्हारे नफ्स को काबू में रखने का एक इम्तिहान है, ये तुम्हारी नीयत की आजमाइश है, ये तुम्हारे ज़ब्त का इम्तिहान है। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने रोज़े को हल्का ले लिया, अगर तुमने एक लम्हे की लज्जत के लिए अपनी इबादत को दांव पर लगा दिया, तो याद रखो, कयामत के दिन तुम्हारे आमाल के वजन में यही लम्हे सबसे भारी साबित होंगे। जो रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब ले जा सकता था, वही तुम्हें जहन्नम की तरफ धकेल सकता है, अगर तुमने इसकी हिफाजत न की। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें रोज़े की हकीकत समझने की तौफीक दे, तुम्हें अपने नफ्स पर काबू पाने वाला बना दे, तुम्हारे दिल को नूर ए ईमान से भर दे, तुम्हारे आमाल को कबूल फरमा ले, तुम्हें इस रमज़ान की बरकतों से नवाज दे, तुम्हारे रोज़ों को तुम्हारे लिए नजात का जरिया बना दे और तुम्हें हमेशा शैतान के वसवसों से महफूज रखे।